This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कावाखाली के पोड़ाझाड़ इलाके में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्य राजू मंडल पर दुकानों में तोड़फोड़ और आग लगाने का गंभीर आरोप लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार राजू मंडल और उनके समर्थकों ने दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने पंचायत सदस्य के घर का घेराव कर नारेबाजी की और उनकी गिरफ्तारी तथा मुआवजे की मांग की। पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। घटना के बाद इलाके में तनाव और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। বেআইনি জমি বিক্রি করা হয় আর কি, তো বেসরকারি জমিগুলো বিক্রি করা হয়, তো এখানে কয়েকদিন আগে থেকে ভাঙচুর শুরু হয়। তো যাই হোক, আমাদের গাড়ি আছে, 4-5টা গাড়ি আছে। আমরা জানি যে গাড়ির ব্যবসা এখন ঘাট বন্ধ আছে, তার জন্য বালি পাথর সব বন্ধ আছে। কিন্তু রাজু মানে কি যত বেআইনি কাজ, ওর গ্যাং নিয়ে সব বেআইনি কাজ করে যুক্ত আছে। এই যে দেখেন বোর্ড লাগানো আছে, এই যে বোর্ডের কাছে আসেন, বোর্ডের কাছে আসেন, আমাদের গাড়ি আছে, আমরা ব্যবসা করতে পারি না। 1 বছর থেকে আমাদের গাড়ি বন্ধ আছে। কিন্তু কালকে ঝামেলাটা হয় বালি পাথর নিয়ে, 2টা গাড়ি ঢুকে আমরা ওখানে কয়েকজন যাই বলে যে এইখানে যে বালি পাথর তো বন্ধ আছে, তাহলে এইগুলো গাড়ি কোথা থেকে আসলো। তো যাই হোক, ওনারা বলেন যে পঞ্চায়েত পাঠাইছে, পঞ্চায়েতের অর্ডারে এটা হচ্ছে। তো যাই হোক, যেহেতু গাড়ির মালিক সাধারণ মানুষও হয়, আমরাও সাধারণ মানুষ, তার জন্য আমরা কোনো ঝামেলা করি না, এখন মাল ফেরত চলে যেতে চাই। কিন্তু রাজু মণ্ডল কি করে, আমরা যেহেতু ওইখানে গেছিল কয়েকজন, তার জন্য দল বল নিয়ে ওখানে মারপিট করতে যায়। তারপরে মারপিট করতে যায়, তো ওখানে হাতাহাতি হয়। তারপরে ওরা চলে আসে এদিকে, আসে এই যে দোকান আছে, তো দোকানে এখানে চলে আসে, দোকান একদম পেট্রোল দিয়ে বাস জ্বালা যায়। যখন আমরা ওই যে থানা থেকে পুলিশ আসে, তখন আমরা বাড়িতে যাই, তখন আমরা বুঝতে পারি যে এরকম, তখন পুলিশ আমাদেরকে নিয়ে আসে এখানে, এসে চাবি দিয়ে খুলে এখানে খুললো, তারপরে জিনিসগুলো বার করলো, তখন আমরা জানতে পারি যে এরকম ঘটনা হয়েছে। खड़गपुर में चाय पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान दिलीप घोष ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हालिया पुलिस तबादलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो जितना बड़ा चोर वह उतना बड़ा नेता। बेरोजगारी भत्ते को उन्होंने कैडर भत्ता करार दिया। साथ ही व्यापारियों पर हमले, मतदाता सूची में गड़बड़ी और कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई। घोष ने दावा किया कि राज्य में जंगल राज है और पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए हो रहा है। যুবসাথীর লিস্ট তৈরি হয়ে গেল, ভাতা এসে গেল, কারা পাবে ভাতা, লক্ষ লক্ষ বেকার আছে, কিসের আধারে তাদেরকে সিলেক্ট করা হলো, যাদেরকে ভাতা দেওয়া হবে? প্রশ্নটাই কেবল নির্বাচনের জন্য ক্যাডার ভাতা হিসেবে এটা কি চালু করা হলো? বেকারদের জন্য অন্ধকার দিকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বেকার ভাতা তো সিপিএমও চালু করেছিল, কি হয়ে গেছে, কার লাভ হয়েছে? তারপর বন্ধ হয়ে যাবে একসময়, বসে খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেল, তারপর কি করবে যুবকরা? ভবিষ্যৎ কি হবে? সিপিএম তো চলে গেল, কিন্তু বেকাররা বেকারই থেকে গেল। কৃষ্ণনগরে বদলি করা হয়েছে, কোথাও ভোটের আগে একটা ক্লিন ইমেজ তৈরি করতে চাইছে সরকার। এখন মমতা ব্যানার্জি প্রথম কথা পুলিশের উপরে এখন আর বিশ্বাস করতে পারছেন না। পুলিশের উপর ভর করে জিতে যেতেন, কিন্তু পুলিশের উপর ভরসা করতে পারছেন না, তাই রোজ অগন্ডগোল করছেন। কিন্তু পুলিশও বুঝে যাচ্ছে যে এবারে পরিবর্তন হবে, তাদের জায়গা পরিবর্তন করে বাঁচানো যাবে না, আর সেই পরিবর্তন করেও তাদেরকে চাকরি করতে হবে। তারাও সেফ সাইড নিচ্ছেন, এই চোরদের সঙ্গে আর তারা সহযোগিতা করতে রাজি নন। জিরোটেকের দিকে অনুব্রত, তারপরে পার্থ এবং বাংলাদেশের যে জায়গা পেয়েছেন বালু, মানে জেল খাটা নেতাদের উপরে ভরসা রাখছে তৃণমূল। না, জেল না খাটলে টিএমসি বড় নেতা হওয়া যায় না। আগে স্বাধীনতা সংগ্रामीরা জেলে যেতেন, তাদেরকে আমরা বাছাই করতাম। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के नंबर प्लेट वाले 14 मोटरसाइकिलें मालदा में भाजपा कार्यालय में प्रवेश कर गईं। इसको लेकर पहले ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि ये मोटरसाइकिलें असामाजिक गतिविधियों के लिए लाई गई हैं। वहीं भाजपा की ओर से बताया गया कि बिहार के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और चूंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता इन बाइक का इस्तेमाल विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए कर सकते हैं। 15 থেকে 20 না 14টা বাইক এসছে। বিহারের তো বাইক হয় না, মোটরসাইকেল হয়। বিহারের নাম্বার এটা আপনারা বলতে পারেন। এর বিহারের ভোট হয়েছে, ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গে এই গাড়িগুলো পাঠানো হয়েছে। প্রতিবার ভোটের সময় ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাদের ভোটের কাজে ঘোরার জন্য মোটরসাইকেল আমরা দিই। সেই জন্য এর আগে
দিল্লি থেকে এই গাড়ি সব বিহারে গেছিল, বিহারের ইলেকশন হয়েছে, এখন গাড়ি সব পশ্চিমবঙ্গে আসবে। শিলিগুড়িতে নেমেছে, বীরভূমে নেমেছে, মালদায় নেমেছে, কলকাতায় নামবে, সমস্ত জায়গায় নামবে এবং গাড়ির কাগজপত্র সমস্ত কিছু ওকে তৈরি করে তারপরেই মালদা শহরে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জায়গায় নামবে। সেই জন্য এটা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কিংবা সরকার দলের কোনো চিন্তা কিংবা প্রশাসনের কোনো দরকার নাই। সমস্ত কাগজপত্র সবার নামে নামে ওকে করে তারপরে এইসব গাড়ি বিজেপির কার্যকর্তারা ভোটের সময় ব্যবহার করে। এই গাড়ি আবার পশ্চিমবঙ্গে ভোট শেষ হয়ে গেলে অন্য জায়গায় যেখানে ভোট সেখানে চলে যাবে। এটা আমাদের কাছে নতুন কিছু নাই, কিন্তু সরকারের দৃষ্টিতে এটা নতুন, কারণ সরকারের যেহেতু মাটির তলে জমি সরে গেছে, তারা বিজেপি অফিসে যা দেখছে তাতে তাদের ওনারা ভূত দেখার মতন ভাবছেন। राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेंगोलर युवा साथी योजना की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2026 से 27 के बजट में घोषित इस योजना के तहत शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो गई है और 26 फरवरी 2026 तक चलेगी। आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक 10वीं पास और आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राशि 1 अप्रैल से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों और कोलकाता नगर निगम के वार्डों में विशेष कैंप लगाए गए हैं। योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। রাজ্যের এই উদ্যোগ কি বলবে? না, ডেফিনেটলি এটা তো এই উদ্যোগ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর, তাই তিনি যে মানুষের হৃদয়ে থাকেন, মানুষের হৃদয়ের খবরটা যে তিনি রাখেন, এটা তার বড় প্রমাণ। অরুণদা অনেক সিনিয়র, আমাদের আগে উনি কাউন্সিলর ছিলেন আমাদের পুর নিগমে এবং পজিটিভ থিঙ্কিং সবসময় অরুণদার আছে। আমার সঙ্গে যেহেতু আমরা একই ফ্রেটার্নিটির এবং অনেক ছোট বয়স থেকে অরুণদার সঙ্গে একটা সম্পর্ক হৃদ্যতা আছে। আমি এলাকা থেকে ইলেকশনে লড়েছি, অরুণদা তো সেই সময় অনেক সাপোর্ট করেছেন। সাপোর্টিভ মানুষ, এইরকম মানুষ যারা আছেন তারাই সমাজের সত্যিকারের কল্যাণে যারা এগিয়ে আসেন। সেখানে দল মত নির্বিশেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারও চিন্তা ভাবনা সেই জায়গাতে যে মানুষের কল্যাণ করো, সেখানে কোনো দল ধর্ম ইত্যাদি এগুলো দেখার কোনো জায়গা নেই। মানুষ যদি খিদে পায়, মানুষের সে খাবার চাইবে। মানুষের যদি স্বাস্থ্যের অসুবিধে হয়, সে দেখে না যে কোন ডাক্তারবাবু কোন ধর্মের, তার রক্ত মানুষের রক্তই মানুষকে দেওয়া হয়। তো স্বাভাবিকভাবে এটা ममता बंदोपाध्याय जे दर्शन। राजू बिष्ट ने बीजेपी जिला बैठक में 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी पर जोर दिया। सिलीगुड़ी में संपन्न बीजेपी दार्जिलिंग जिला की बैठक में मंगल पांडे की उपस्थिति में 3 पहाड़ी विधानसभा क्षेत्रों दार्जिलिंग, करसियोंग और कालिम्पोंग से जुड़े संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों, जनसंपर्क कार्यक्रमों और युवाओं के लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। राजू बिष्ट ने इस चुनाव को राज्य में पारदर्शिता, कानून के शासन और नए आरंभ का अवसर बताया। बैठक में जिला कार्यालय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, होम मेकओवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टी र जित्नुहोस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू।
ટિકિટ 500 રૂપિયા ડ્રો 21 ફેબ્રુઆરી યાદ રાખનું હોસ પહેલો પુરસ્કાર 3 કરોડ કેવલ बिक्री भाई का टिकट पाटर डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी भाग्य बदलिन छ जीवन बदलिन छ। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. What's your favorite? Favorites? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipath, here, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के फांसी देवा ब्लॉक अंतर्गत काशीराम इलाके में रविवार को एक व्यक्ति द्वारा महानंदा केनाल में कूदकर आत्महत्या करने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सिलीगुड़ी के मिलनपल्ली निवासी मनोज डालमिया 48 के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मनोज अपनी स्कूटी से केनाल किनारे पहुंचे वहां एक सुसाइड नोट छोड़ा और उफनते पानी में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर फांसीदेवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण शुरुआती तलाश में सफलता नहीं मिली। वर्तमान में राज्य आपदा प्रबंधन दल DMG के गोताखोर शव की तलाश में जुटे हैं। पुलिस ने घटनास्थल से स्कूटी और सुसाइड नोट बरामद कर लिया है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए लाखों भक्त पहुंचे। सुबह 4:30 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग रात से ही लंबी कतारों में खड़े रहे। हर हर महादेव और बोल बम की जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा बल तैनात किए और विशेष रूट चार्ट बनाए। मंदिर में गर्भगृह से लेकर बाहरी परिसर तक CCTV निगरानी की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा शिविर और पेयजल की व्यवस्था भी की गई। महाशिवरात्रि पर नदिया जिले के कृष्णगंज स्थित ऐतिहासिक शिवनिवास मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। यहां एशिया का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की स्थापना नदिया के राजा कृष्णचंद्र ने मराठा आक्रमण के समय की थी। परिसर में 2 विशाल शिवलिंग वाले मंदिर और एक राम सीता मंदिर है। मान्यता है कि दस्यु नसरत खां पर विजय के बाद राजा ने यहां विशेष पूजा की परंपरा शुरू की। सुबह से लंबी कतारें लगी हैं। भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक कर रहे हैं और कई दंडी काटते हुए पहुंच रहे हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। তোমরা শিবনিবাসে জল ঢেলতে এসেছো কেন? ওই আজকে শিবরাত্রি আমরা উপোস করেছি, আজকে জল ঢেলবো ওই অল্প বেলপাতা দিয়ে ফুল দিয়ে মহাদেব সন্তুষ্ট। প্রত্যেক বছর তোমরা আসো? হ্যাঁ। কোথা থেকে এসেছো তোমরা? বাবলাবন থেকে এসেছি। তোমার নাম? শর্মিলা মণ্ডল। এই যে শিবকে জল দাও, আর কিছু চাইবে শিবের কাছে? কি চাইবো? जलपाईगुड़ी में त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव और शांति रैली का आयोजन किया गया।
शिव बाबा के झंडे के ऊंचा फहराने के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शांति का संदेश फैलाया गया। इस अवसर पर उपस्थित थे सदर वीडियो मेहर कर्मकार जलपाईगुड़ी नगर निगम के अध्यक्ष सैयकत चटर्जी, उपाध्यक्ष संदीप महतो और पार्षद उत्तम बोस सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति। आज शहर के शिल्प समिति पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाई गई। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाना है। कार्यक्रम में विशेष योग सत्र नगर में भव्य शोभा यात्रा, ब्रह्मा बाबा का झंडा फहराना और ब्रह्मा भोजन के आयोजन के साथ समापन हुआ। उत्तर 24 परगना जिले के पिट्रापोल थाना क्षेत्र के हरिदासपुर जामतला में शनिवार रात भीषण आग लगने से 2 दुकानें जलकर खाक हो गईं, जबकि एक अन्य दुकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई। देर रात साइकिल और दवा दुकान से उठती लपटें देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। सूचना पर बनगांव से दमकल की एक गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दोनों दुकानें पूरी तरह जल चुकी थीं। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और दमकल विभाग शॉर्ट सर्किट समेत अन्य संभावनाओं की जांच कर रहे हैं। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। জানতে পারি এখন রাত্রে অনেকবার ফোন করা হয়েছে আমাদের, তো আমরা পাওয়ার পরে ফোনটা মানে সাইলেন্ট ছিল আর কি। আমার নাম্বারটা তো এখানে নেই। বাবা এখন অসুস্থ, বাবা 5 মাস হচ্ছে, হার্ট অপারেশন হয়েছে, ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে। তো আমি আসি ডাক্তারখানাটা, আমি চেম্বারটা আমিই চালাই দুবেলা। কালকে রাত 8:30 নাগাদ আমি এখান থেকে বন্ধ করে বাড়িতে গিয়েছি। যাওয়ার পরে এখন শুনছি রাত 11:10-15 নাগাদ নাকি আগুনটা ধরেছে, আর 11:40-এর ভিতরে সব শেষ। ফায়ার ব্রিগেড যখন এসছে তখন সবই শেষ। এবার দোকানে ওষুধ অন্তত অনেক টাকার ওষুধ ছিল, কি আর বলবো বলুন। এমনই একটা ক্ষতি মানে মেনে নিয়ে যাচ্ছে না জিনিসটা। পুরো শেষ, ওষুধপত্র যা ছিল পুরো শেষ। এই চেম্বারের উপরেই তো আমাদের সবকিছু, এখন সবই শেষ আমাদের। আমার নাম আলমামুন মন্ডল। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर पे।